दो धन सतगुरु जी हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, श्याम अस्ताना श्याम लोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा, शहनशाह के शहनशाह बाबा शाह रघुवीर सिंह जी तेरा ही आसरा, हर जगह समृद्ध साईं जी तेरा ही आसरा, दो धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਐਨੇ ਉੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਘਰ। ਆ ਛੱਪੜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 20-22 ਸਾਲ ਤਾਂ 23 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹ ਫਿਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਧਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 600 ਮਸਤਾਨੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੀਲੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ, 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੇਰੇ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੱਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਛੇਰਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਪਲੀਏ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੀਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਪਵਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਾਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੀਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪਵਨ ਜੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਬਾਊ ਰਾਮ, ਪੂਰਨ ਜੀ, ਚੋਰਮਾਰ ਮੰਨੇ ਸਾਈ ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨਗੇ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 3-4 ਦੀ, ਧੀਰੇ ਦੀ, ਅਰਜਨ ਦੀ, ਇਹਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਲੈ।
अजे मेहर सिंह तगड़ा लगता है तो जमा ही दबया पिया है। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਾਈ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰੋ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ। ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤਕੜਾ ਹੈ ਜੇ। ਮਨੇਸਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈ ਸਖਤ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। मैं शुरू चो देखता रहा सन 68 तो लैके 98 तक जेड़े बंदे असूलों से कायम रहे वो तली वर्गे ने जमा। जेड़े असूलों तो गिर गए उन्होंने मार पै गई सतगुर तो। ये शब्द गाते हैं कि नज़रों से गिराना ना, सतगुर तेरे चरणों की नज़रों से ना गिराना। जे असी माँ बाप के नज़रों चो गिर जाइए तो सानू साडा प्यो कुछ नहीं दिंदा गा। वो कह दूगा भी नज़रों तो अपने बेदखल कर दूगा। ये तो बाहर मुखी गल हो गई। अगर जे संतां दे नज़रों तो गिर गया, अपने मालक के नज़रों तो गिर गया तो कोई बांह फड़ने वाला कोई नहीं है। दुनिया चो बांह फड़ने वाला कोई नहीं है। सिर्फ खानियां 2 रोटियां ना, बाकी इत्थों की मिट्टी इत्थे रह जूगी। काणी काड़ी नाल नहीं जानी। जेड़े कहंदे सी नाल काल नूं नाल पावे ते बंधिया, असी ना दिने मरीए ना रात नूं मरीए, ना अंदर मरीए ना बाहर मरीए। वो भी मौत के शिकार हो गए। वो भी मौत के शिकार हो गए। कोई आदमी मौत तो नहीं बच सकता। ये मौत सब ते आऊगी एक दिन। असी दिनों दिन मौत के नेड़े होंदे जाने पे हाँ। दिनों दिन असी मौत के नज़दीक होंदे जाने पे हाँ। सानू पता ही नहीं, असी सोचते ही नहीं गए आ कर लीए वो कर लीए आ कर लीए। एक एक मिनट करके असी मौत के नज़दीक जा रहे हैं। किसी रिश्तेदारी जाना हो, ब्याह जाना हो, किते होर जाना हो, असी 15 दिन पहला तैयारी कर लें। कपड़े लीड़े की तैयारी कर लें, पैसे धेले की तैयारी कर लें। जिम्मेवारी संभाल देना भी खेत पानी तैन लाना है। ये तो जिम्मेवारी की। असी मालक की दरगाह जावांगे, उत्थे की मूँह दिखावांगे बई, उत्थे की तैयारी की है। भजन असी नहीं किया, सेवा करने नूं साडा मन तैयार नहीं। आ दुनिया के जिन्ने मर्जी काम करा लो। हुण 1 साल भर दुनिया दिल्ली उत्थे बैठी रही, खा खा नशे गोलियां ते मार जरदा बीड़ियां उत्थे बैठी रही। तो सत्संग ते आने को तैयार नहीं, गुरुद्वारे सेवा करने को तैयार नहीं। जी कह रही है गुरु घर जाओ सवेरे, देखो किन्ने क बंदे जाते हैं उत्थे गुरु घर। ये काल दियां शक्तियां हनगियां। ये सानू सारे ने मन ने भरमा रखा है, मन ने ऐसी चक्री चढ़ा रखी है, सारे नूं बेहोश कर रखे है। मेरे से कुर्सी ले आने यार, बुढ़ा आदमी है, बुढ़े आदमी का ख्याल रखा करो भाई। मेरे से इतने उत्ते आया यार। देखो इन्हें इतनी हुण 90 साल 95 साल की उम्र हो गई होनी है, तो तकरीबन 4-5 तक गए। आ देख लै हुण है जी 100 तो टप गया। वाह भाई वाह, देखा भाई। तो भाई मेरे से नहीं बड़ी कमाई सीगी। वकील साहब जी को नचा करता सी, वकील साहब ने बड़िया नूं घड़ियां दित्तियां। बड़ा वकील साहब जी ने उन्होंने प्यार किया। ये हुण तां इहदी सेवा करन भाई हाथी बुढ़ा हो गया। कहंदे हाथी जिउंदा तो लख दा ते मरिया 1.25 लाख दा। तो भी हुण सेवा करो इहदी हाथी दी। हुण पता नहीं कदों हाथी जंगल च चला जाए।
पर मैनू तो हुण ये भी हाथी वांगू ये लगी जाता इधर है जी। ये नहीं पता भी क्यों भी जगराज वो मैनू ये नहीं पता भी हाथी पहला ये जाऊगा ये जाऊगा। ये असूलों की पक्का है। तो बई गलती हरेक इंसान तो हो जाती है। असी गलतियां दी पुतलियां सारे गलतियां दी पुतलियां आखिर बस हाँ ऐ आखे तो नहीं लगाई कुत्ती शिकार नहीं मारती होंगी। हाँ जिन्ना चिकर अंदरों लूरी ना उठे। तो हरेक इंसान गलतियां का पुतला है। गलती होने तो बाद बंदे नूं पछताना चाहिए है भी मेरे तो गलती हो गई। साढ़े 10 रुपये गिर जान कितनी चिंता रही है यार 10 रुपये गिर गए किवें गिर गए बई। असी रोज़ के किन्ने साह बर्बाद करी जाने। संतां तो असी बेनज़र हो गए। सानू रोना पिटना चाहिए भी बाबा सातों गलती हो गई असी तेरे अनजान बच्चे हाँ सानू दया मेहर करके बख्श लै तू। तो सतगुर बड़ा ही दयालु है साढ़े ते दया करन नूं तैयार है। पर दया भी असी लै नहीं सकते कि जे असी दीनता दिखावांगे तो दया सानू मिलूगी। असी तो हंकार नाल भरे फिरदे हां फिर हंकार नूं मार है हमेशा। ये काम सारा दीनता दा है। हमेशा जेड़े फल नूं दरख्त नूं फल लगता है वह चुक जाता है जमीन नाल लग जाता है वो फल वाला दरख्त। जेड़ा उच्चा रह जाता है वह नेरी तूफान उसदी जड़ां पट दिंदी है। वो आकड़ जाता है तूफान च उन्होंने नेरी जड़ों पट दिंदी है। जेड़े झोला खांदे रहंदे ने झुक जाते हैं वो बच जाते हैं। कहने का भाव जो संतां के दरबार जाके झुकूआ मन से लानता मारूआ वो फायदा ठा जूगा। तो बई दीनता नूं फल लगते हैं। मैनेजर साहब जी ने बड़ी साडे ते रहमत की। सब असी गुनाहगार सीगे सब कर्मां दे मारे सीगे। मैनेजर साहब जी ने सब नूं गल नाल लाए। संतां दे कोले दया इतनी है वो साडे गुण अवगुण नहीं देखता। जे साढ़े औगुणा बल देखे तो साढ़े च इतने गुनाह हानगे जिन्ने साढ़े शरीर ते रोम रोम च बाल हानगे। जिन्ने साढ़े रोम रोम ते बाल इन्ने असी गुनाहगार हाँ। पर सतगुर बड़ा दयालु है सानू गुनाहगारां नूं गल नाल लाउंदा है। सानू बई संतां दे दरबार जाके सेवा करनी चाहिए है। दया हरेक दे नाल प्यार करना चाहिए है। उत्थे आकड़ नहीं करनी चाहिए भी ये छोटा है जे बड़ा ना। बड़ा कौन है जिहड़ा संतां दा हुक्म मन के नाम जपदा है वह बड़ा है। उहदी मालक की दरगाह च कदर है। अमलां ते होणगे नवेड़े किसी ना तेरी जात पुछनी उत्थे नवेड़े होणगे जिहड़ा भजन करूगा उहदी दरगाह च कदर है। बाकी तो लंबरदारी इत्थों दी इत्थे रह जूगी। हाँ जी बड़े बड़े लंबरदार होए दुनिया दे विच लम्मे पैर पसार गए। वो माँ सिकंदर दी रोंदी है कहती माँ सिकंदर दी रोंदी इकट्ठा करके बेड़े नूं उचियां उचियां बांगां दिंदी करदी मेरे मेरे नूं। कबर दे विचों आवाज़ आई माँ तू छड्ड दे ऐस बखेड़े नूं। इत्थे लखां सिकंदर टुर गए न तू रोंदियां किहड़े किहड़े नूं। जेड़ा भी जेड़े घर दे विच कोई माँ बाप का बेटा है वो अपने घर च हरेक ही सिकंदर है हरेक ही बादशाह है जिहड़ा अपने घर दे विच हैगा। तो भाई सिमरन करो नाम जपो सब ने चले जाना है। इत्थे रहन का टाइम ही है नहीं। कोई अज गया कोई कल गया कोई अज गया। मौत सिर ते घूमती है। इत्थे मौत सिर ते घूमती है। एक मिनट ना छड्डो बाबा जी कहते चलते फिरते सौंदे जागते एक मिनट भी ना छड्डो। एक कदम चक्कीए दूजी की आस नहीं है। ये पानी के बुलबुले वाली मनियाद है बंदे की। हुण साडे ये प्रेमी शब्द सुनाउणगे आप पीली पगड़ी वालों फड़ाओ पिछे बई। हाँ जी कि उन्होंने रब नूं की याद करना जिन्होंने खामणी आंदी धड़ी होए है जी। ये फकीरां दी निशानी है। कम सौना घट बोलना तो घट ही खाना। तो बई शरीर नूं चलाउण वास्ते खाओ। ज़्यादा खादा बंदा बीमार होता है। बाबा जी कहते दुनिया खा खा के बीमार होई है। जगह जगह हस्पताल खुले पे ने। शाम नूं भी खा लिया दोपहरे भी खा लिया रात नूं भी खा लिया। मैनेजर साहब जी टाइम देखते रहे साड़ी ड्यूटी से लंगर च
एक एक रोटी दिंदे सी, किन्नी किन्नी बारी रोटी बंद कर दिंदे सी, किन्नी जी ने जाना करे जाओ। सौण नहीं दिंदे सी, सौ जे पानी पा दे उत्ते। रात को दरियां बुनिया करते सी, पहलवान हो रहे, गुरनाम हो रहे, जिन्हें भी सारे सीगे। साढ़े तो ड्यूटी शुरू चो लंगर च होंदी सी ते जगा के रखते सी। किसी को ना नींद सीगी, ना किसी को भुख सीगी, ना किसी को थकावट आउंदी सीगी। हुण असीं खा खा के आलसी होए आ, इतने आलसी होए, सानू सिमरन करन दा टाइम ही नहीं, कोई नाम जपदा ही नहीं कोई। हुण बाबे बने फिरदे आ सारे, की करांगे भाई? सेवादार बनांगे तो फायदा उठावांगे। इन्हां च कुछ नहीं पिया, लंबरदारियां च कुछ नहीं पिया, प्रधानगियां च कुछ नहीं पिया। जिहड़ा बंदा सेवा करूगा वो फायदा उठाऊगा। असीं बिल्ला ला लांगे, मैं प्रधान हाँ, मैं फलाना, ये बिल्ले बाले कुछ नहीं कर देगे। ये तो लोग दिखावे हनगे। ये तो मेहनत का मजबून है, जिहड़ा सेवा करूगा वो ही फायदा उठाऊगा। बस मैनेजर साहब जी ने दो ही गल्लां सिखाइयां, सिमरन ते सेवा। सौण का नाम नहीं कदे लिया सी बाबा जी ने, सिमरन ते सेवा। सौना तो मां ने सिखाया भाई, सौ जो सौ जो सौ जो, मैं काम करना। नींद जिहड़ी है ये अंधेरे का रूप है, मालक नूं नहीं मिलण दिंदी, परमेश्वर नूं नहीं मिलण दिंदी। हाँ जी महात्मा जी, पंजाबी समझते हो जी? पंजाबी समझ आती है ना थोड़ी थोड़ी? तो आप तो फिर पंजाब में भी प्रोग्राम करते हो, फिर कैसे करते हो हिंदी में? तो हम तो अनपढ़ हैं जी, हमारे को तो कुछ नहीं आता। हाँ भाई बोल भाई। हम धन सतगुरु तेरा है। हरिया फुल्ला सुक जाना, हो तेरे हरिया फुला सुक जाना, सिंबला तू का दामान करे, सिंबला तू का दामान करे। बल रुख सरायरा, सिंबल रुख सरायरा, ओ सिंबल रुख सरायरा, सिंबल रुख सरायरा। देखो भाई, इन्हें शब्द जिहड़ा बोलिया है ये गुरबाणी दे विच आउंदा। सिंबल का जिक्र, सिंबल बड़ा उच्चा दरख्त है, उसकी छां कोई नहीं, बड़े बड़े बड़ा मोटा तो भारी हैगा। राही आउंदा वो निराश होकर जाता, उसकी छां भी है नहीं। ਉਹਦੇ फल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ भी बक बके ना, ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਟਿੰਡੇ लगते है। जो खिड़ जाता है वो तोता सोचता भी अनार है, कोई फल है, वो चुंझ मारता है, बिचों रूह निकलती है। वो तोता भी सिर रोंदा भी, ये तो वो शब्द आउंदा तोते का, अगर चुम चुम सिर किवें बई हो, तुन तुन सिर धुन धुन पछताया। हाँ जी, ये शब्द है, देखो गुरबाणी दे विच आउंदा है। ये संसार फूल सिंबल का, सुओ देख लुभायो, मारी चौंच रूई जब निकसी, सिर धुन धुन पछतायो। सूआ तोते नूं कहंदे आ, सूआ तोते नूं कहंदे आ भी उन्हें क्या भी फल है, चुंझ मारी रूह निकली, वो भी पछताया। तो जी बहुत बड़ा दरख्त होंदा है, बड़ा मोटा होंदा है, तो छां बिल्कुल नहीं, पत्ते भी कोड़े, फल भी बकबके। ले आ गया भाई, देख लो भाई। इन्होंने कहा कि यार साढ़े तो संगत आ जाओ, साढ़े तो प्रेमी नाराज होए कि रवि नूं नहीं लेके आए। मैं कहा जी उन्हें पढ़न जाना सीगा। इनू फोन किया बेचारे नूं, देखो 8:30 पौने 9 बजे। तुसीं कौन कौन तिन्ने ही आए हो भाई? काहदे आए हो? कार लेके आए हो? अच्छा चलो भाई, साढ़े नाल 15-20 दिन रह के आया उत्थे। हुण असीं तां क्या भी स्कूल का काम जरूरी है भाई, स्कूल का जरूरी। असीं तां अनपढ़ बंदे सीगे, साडे कोल तां सारे अनपढ़ ही साडे हनगे। पर हुण टाइम है जा भाई, पढ़िया तो बगैर गल नहीं बनती। चलो अज चलो बुला लिया भाई, अगां हुण पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना है। हाँ जी, सिमल दरख्त, सिमल रुख सरायरा, सिमल रुख सरायरा, ओ सिंबल रुख सरायरा, सिंबल रुख सरायरा। आत धीर गया त मोच, सिमला तो कादा मान करे, सिमला तो कादा मान करे। तेरे हरिया फुला सुक जाना, सिमला तो कादा मान करे, ओ सिमला तो कादा मान करे। फूल फिके फल बक बके,
ਫੁੱਲ ਫਿਕੇ ਫਲ ਬਕ ਬਕੇ ਫੁੱਲ ਫਿਕੇ ਫਲ ਬਕ ਬਕੇ ਫੁੱਲ ਫਿਕੇ ਫਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਸਿੰਬਲਾ ਤੋ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਕਰ ਸਿੰਬਲਾ ਤੋਂ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਹਰਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸਿੰਬਲਾ ਤੋ ਕਾਦਾ ਕਰੇ ਸਿੰਬਲਾ ਤੋਂ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਓਏ ਜਿਆਵੇ ਆਸ ਤਾਰੇ ਕੋਈ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰੇ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਸਿਮਲਾ ਤੋ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਕਰ ਸਿਮਲਾ ਤੋ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਕਰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਫੁੱਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸਿਮਲਾ ਤੋ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇ ਸਿੰਬਲਾ ਤੋਂ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਹੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਿੰਬਲਾ ਤੋ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਕਰ ਸਿੰਬਲਾ ਤੋਂ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਹਰਿਆ ਫੁੱਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸਿੰਬਲਾ ਤੋਂ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਉਹ ਸਿੰਬਲਾ ਤੋਂ ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਚਲੋ ਲਵ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਬਾਈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਰਥ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜਿਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਜੇ ਕਰ ਸਬਕ ਪੜਨਾ ਤੇ ਵਾਂਗ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਸੂਲੀ ਜੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵਣਾ ਏ ਪੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਫੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਲੀ ਨਾ ਦੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਲੀ ਨਾ ਦੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਸ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਸ ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ
ਵੇਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਗਾਈ ਤੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝਾਤੀ ਪਾਵੀਂ ਜੰਗਲੀ ਢੋਲੀ ਨਾ ਦੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਲੀ ਨਾ ਵੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਵਾਂਗ ਹੰਸ ਦੇ ਪਾਈ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਰੋਲੀ ਤੂੰ ਵਾਂਗ ਹੰਸ ਦੇ ਪਾਈ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਰੋਲੀ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਕਾ ਵਾਂਗੂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਫਰੋਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਫੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਲੀ ਨਾ ਵੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਛੱਡ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਜੀ ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਈ ਛੱਡ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਜੀ ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਈ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਲੀ ਨਾ ਦੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਰਸਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲੀ ਨਾ ਦੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਲੀ ਨਾ ਵੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਵੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੀਰਾ ਹੀਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਚੇਤ ਸਿਕੇ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਬੇੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬੇੜਾ ਖਾਦੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਪਏ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਸਮਝੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਜੋੜ ਪਹਿਲੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੰਨ ਫੜ ਗਿਆ ਮੂਸਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਪਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਜਾਨਵਰ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਮਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੂਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ 184 ਹੈ, ਦੇਖੋ 184 ਜੂਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਪਰਬ ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਐਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 184 ਜੂਨੀਆਂ, 184 ਜੂਨੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭੁਗਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 184 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 184 खत्म हुई ना, कोट कलप जो गुचार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। खबरा किन्ने असी जन्म ले, जो कुछ सानू दिसदा है ये सारे जूनिया दे विच है। सब अपनी अपनी जूनिया भुगतते पे न। आ जिहड़े जिहड़े दरख्त बने हुए न, ये साडे बाप तो बाप दादे दे टाइम दे लगे हुए न। सानू ये नहीं पता भी किन्ने साल दे खड़े है। ये बेचारे चुप खड़े है एक थां, कैद। कदों ये खड़सक होए, कदों इन्हां दी जूनी गां बदली। ला लो साहब 84 लाख जूनी है। देखो घाह फूस वगैरह पौधे किन्ने, पानी दे जीव किन्ने, हवा दे विच जीव। ते ये आपां बड़े भाग्यशाली हैं, आपां नूं फकीर मिलिया है। इस तो फायदा उठाओ। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। पर इन्नी गल जरूर है, जिन्हां ने संतां तो नाम लै लिया, जिन्हां ने पूरे फकीर तो नाम लै लिया, दर्शन कर ले, वो बंदे की जूनी तो घट नहीं जाएंगे, उन्होंने बंदे की जूनी मिलूगी। पर भगती करनी पऊगी। कहो नानक तत्व बचारा, बिना भजन नहीं छुटकारा। ये संतां ने निचोड़ कढ़ के गुरबाणी च लिखा हुआ है, भजन तो बगैर छुटकारा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, कुछ कर ले भजन सतगुरु का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। कुछ कर ले भजन सतगुरु का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। चिड़िया चुगली खेत, कुछ कर ले भजन सतगुरु का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है।
माटी में क्यों तूने खो दिया, जन्म अनमोल मिला ये हीरा, माटी में क्यों रोल दिया। जिन राह पे चलना तुझे उसी राह में कांटों को बो दिया। ये ना सोचा कि झूठा संसार है और झूठी ही मौज बहार है। ये दुनिया तो मिला चंद रोज का, आखिर को यहाँ अंधकार है। कुछ कर ले भजन सतगुरु का, तेरे जीवन का तो ये सार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। और देखो भाई, इन्होंने क्या है भी बगैर बंदगी जीवन बेकार है। ये तो इंसान बंदगी करता है मालिक की, फिर तो ये सोने ते सुहागा है। अगर बंदगी नहीं करता तो कौड़ी का भी नहीं है, आदमी किसी काम का भी नहीं है अगर जो उस ईश्वर की या प्रभु की भक्ति नहीं करता। इससे तो बाबा जी क्या करते थे, मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे, कुत्ते में 10 गुण बताते हैं, 10 गुण। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं जो भजन सिमरन करते हैं, छोटे फकीर हैं, वो कभी कभी क्रोध में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी दीनता किस में है? कुत्ते में। कुत्ता दरवाजे आगे बैठा रहेगा, उसको कितने कूटो पीटो, जब चुटकी मारोगे आपके पैरों में आके गिर जाएगा। वो ये नहीं सोचता मेरे को इन्होंने पटाई करी है ना, उसी टाइम ही आपके पैरों में आके पूंछ मारना आ जाएगा। फिर उसको बाहर काट दो, फिर भाग जाएगा, फिर बुलाओ, फिर आपके पैरों में पड़ जाएगा। तो कुत्ते में 10 गुण बताए हैं। बुल्ले शाह ने भी कुत्ते का किया है कि उठ बोलिया नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते ते दिने जार उड़ी ते सुते। जे भजन कर दिया तो ठीक है, नहीं तो बंदा कौडी का ही को नहीं। देखो जानवरों के तो देखो गोबर भी काम आता है, दूध पीते हैं, हड्डियां काम आती है, चमड़ी काम आती है। पशु मरे तो काज समारे, आदमी मरे तो काज बगाड़े। बंदा मरदा कितना खर्चा करा देना भाई, किसी दिन साफ पाओ, किसी कुछ पाओ, लड्डू जलेबियां बनाओ, फलाना करो। अगर भजन करता है तो इंसान है, नहीं तो आदमी किसी काम का ही नहीं है जी। तो भाई बंदगी सबसे ऊंची है। सिमरन करोगे तो फिर ही बात बनेगी, नहीं तो बस मुश्किल का काम, बड़ा कम मौका है। मैंने सही एक शब्द गवाया करते थे कि भजनगढ़ बंद हो रहे मेरा भाई, आगे जमसंग होगी लड़ाई। जमों की लड़ाई जरूर आएगी, जमदूतों की लड़ाई जरूर आएगी। इसके लिए भाई भजन करना पड़ेगा। एक एक ईंट लगाए दीवार खड़ी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा भजन करो बहुत ही हो जाता है। सिमरन कर करके किला बना लो कि जमदूतों की मार ना हो। इसलिए कहा है कि भजन करके अपना किला बना लो। भजनगढ़ बंद हो रहे मेरा भाई, आगे जमसंग होगी लड़ाई। तो भाई जो तो गुरु वाले हैं, सत्संगी आदमी है, वो चाहे कितनी भी गलती कर रहे, चोला छोड़ने से पहले उसको तकलीफ देगा, जमा सीधा करके साफ करके फिर लेके जाएगा। जो सूलों पर कायम है वो बता के जाएगा, सब कुछ कह के जाएगा, महीना 2 महीने पहले बता के जाएगा, नहीं तो मौके पर जरूर बताएगा। फकीर की यही निशानी है, संतों को चिताया होया जीव आराम से जाएगा, बता के जाएगा। चेहरे पर रौनक रहेगी, शरीर काला नहीं पड़ता, शरीर करड़ा नहीं होता, टट्टी पेशाब नहीं निकलता। जो गैर प्रेमी है, जिन्होंने कोई गुरु नहीं धारा, या सत्संग में नहीं गए, जो गुरु को नहीं मानते, कलयुगी जीव हैं, वो रोते चलाते जाएंगे, टट्टी पेशाब निकल जाएगा, चेहरा काला पड़ जाएगा, शरीर लकड़ी की तरह करड़ा हो जाएगा। ये निशानी है। तो भाई
गैर प्रेमी की किसी कमरे में मौत होती है और प्रेमी उस कमरे में बढ़ जाए तो जमदूत कमरे में से भाग जाएंगे। कहते हैं जमदूत प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत न सजामण, जमदूतों की माँ की ताकत नहीं है, उस कमरे में बढ़ जाए। तो वही भजन में इतनी बड़ी ताकत है, भरोसे से यकीन से जपो, भरोसा करो भी मालिक हमारे संत पूरे हैं, फकीर पूरे हैं, विश्वास रख के फिर काम होगा, ऊपरले मन से नहीं। हाँ जी लाभ जी। सच्चे नाल मोहब्बत तेरी छट के झूठी प्रीति, बार बार ये जन्म नहीं मिलना जाए उमरिया बीती। कुछ कर ले भजन सतगुरु का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। कुत्ते की बात चल पड़ी, डेरे जगमाल वाले की मैं हकीकत की बात बताता हूँ। की गल भाई, बैठा रहने दो यार, कोई गल नहीं, इतने लिया दो कोई डब्बा डब्बा, और बुढ़े आदमी ने तय होंगे जी भाई चलो ठीक है मंजे ते पा दो बेचार, अच्छा करे सुनू आवाज। तो डेरे जगमाल वाले की बात बताता हूँ। 1:30 बजे का टाइम है, तालियां के नीचे नलका था, सबको पता है, छोटी सी हौदिया बनी हुई है पानी डोलने के लिए। तो वहां चिड़ियां पानी पी रही है, चिड़ियां, और मैं ते पूर्ण ताली नीचे खड़े हैं। 1:30 बजे का टाइम, चिड़ी पानी पी रही है, ऐसे देख रही है, चिड़ी पानी पी रही है, ऐसे देख रही है। वो कुत्ता अपना ऐसे तकता 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 तकता, जब चिड़ी पानी पीने लगी ना तो कुत्ते ने मुंह में चिड़ी गाल ली, मुंह बंद कर लिया, हमारी तरफ देखने लग गया ऐसे। मैं कहा पूर्ण जी, कुत्ता तो चिड़ी को मुंह में गाल गया कि हाँ जी। थोड़ा सा दबका मारा ना छाड़े से मुंह, तो कुत्ते ने मुंह खोल दिया, मुंह में से निकल के चिड़ी ऊपर टाली ऊपर जाके बैठ गई। देखो कुत्ते के मुंह में से निकल के चिड़ी कुत्ते के टाली पर जाके बैठ गई। हकीकत की बात है, देखो कितना समझदार होया। जे बच्चे के मुंह में पतासा डाल दें तो बच्चा तो पतासे को खा जाएगा यदि। तो कुत्ते के इतने इतने बड़े दांत है भाई, चिड़ी मुंह में ले ली रही, उसके बाल ही को नहीं बेंगा होया। देखो अरे ऐसे जाके जो ललकरा मारा, कुत्ते ने मुंह खोल दिया, जाके टाली पर जाके बैठ गई। यानी कि जानवर भी आदमी से सियाना है, पशु भी सियाने हैं। डंगरों को खोल दो अपने खूंटे पर चले जाएंगे, पानी के लिए छोड़ दो छप्पड़ में चले जाएंगे, अपने आप बाहर आ जाएंगे। और आदमी को संतों ने समझा समझा के थक के, गुरबाणी पढ़ पढ़ के थक के जाते हैं गुरुद्वारे, मत्था टेक आते हैं, हलवा खाए आते हैं, मत्था टेक आते हैं। ये नहीं कहते, सोचते भी गुरबाणी कहती क्या है। गुरुओं ने गुरबाणी में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना निचोड़ निकाल के, अर्क निकाल के गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। किसी चीज को नहीं छोड़ा, पर किसी को पता नहीं। गुरबाणी में बड़ा कुछ लिखा है, अरे जो पड़ोसी हैं गांव वालों को पूछ लो, पता नहीं, मत्था टेके आए बस, सुनते ही नहीं। तो भाई गुरुद्वारे में जाओ, कहीं जाओ, उस बात को पल्ले पकड़ो कि कहती क्या है, ले जाती कहाँ है। गुरबाणी सब अंदर ले जा रही है, अंदर जिंदा राम से मिलाती है, जो जिंदा राम है उससे मिलाती है। बाकी गुरबाणी कहती है इधर जाओ, हम उसके विरुद्ध जाते हैं, ऐसे जाते हैं, उसकी मानता ही कोई नहीं। अब घरों में देखते हैं कोई खंड पाठ कराता है, कोई साधारण पाठ कराता है, बाद में वही कई कवाड़ी। कोई किसी चीज की पूजा करता है, कोई चेलों के पास जाता है, कोई कहीं मत्था रगड़ता है, कोई कहीं मत्था रगड़ता है। मत्थे रगड़ने से कुछ नहीं बनता जब तक अपने आप को नीचा नहीं करोगे। मत्था रगड़ना तो एक दुनिया के सामने एक लोक दिखावा है। किसी आदमी ने सवाल कराया, कहते हैं जी हम सब जगह जाते हैं, क्या करें, जाना पड़ता है, गुरुद्वारे में भी जाना पड़ता है, मंदिर में भी जाना पड़ता है, इसका क्या इलाज है। इलाज तो सभी है भाई। जिस चीज को आप मानते हो, आंखा मीच के मत्था टेक दो, अंदर कह दे बाबा तेरे को मत्था टेका मैंने, अंदर सदगुरु खुश, बाहर दुनिया खुश। कहीं भी जाते हो
बेनती करो, बाबा तेरे को मानता हूँ, नारा तेरे को लगाया, मत्था तेरे को टेके है। बाहर दुनिया खुश है, अंदर सतगुरु खुश है जी। तो वही सबको राजी रखना पड़ता है। कहीं भी जाओ गुण उठाओ और गुण ना ले आओ। बाबा जी के पास कई बार आदमी आते, एक आदमी आया, कहते बाबा जी दुनिया बड़ी बेईमान है, कि हाँ जी। दूसरा आया कि जी दुनिया आधी बेईमान है, कि हाँ जी। तीसरा आया जी थोड़ी थोड़ी दुनिया बेईमान है, कि हाँ जी। चले गए कि जी ये इसका क्या मतलब होया। बाबा जी कहने लगे जो पहला आया था ना वो खुद ही बेईमान था, वो खुद बेईमान ही था जो पहले आया था। जैसा भांडा होता है वैसी आवाज दे देता है। पीले बर्तन में आवाज पीली आएगी, पक्के बर्तन में पक्की आवाज आएगी। जो भजन सेवन करते हैं उनके अंदर प्यार की आवाज आएगी, उसके अंदर प्यार की किरणा निकलती है, वो हमारे को मोती है। हंकारी के अंदर से अहंकार की, क्रोध की किरणें निकलती है। कई आदमी देखते हैं सुबह सुबह मिलते हैं, इतना प्यार मिलता है, और कई आदमी ऐसे ही मिलते हैं सारा दिन काम ही नहीं चलता कि आज तो यार बड़ा कोई आदमी मिला, कड़मे मथे वाला, काम ही नहीं चलता। तो एक जगह आता है गुरबाणी में कि पापी एक ना मिले नुगरा मिले हजार, एक नुगरे के गल पर लख पापी का पार। कि पापी बेशक हजार मिल जावे, प्रेमी होवे कोई बात नहीं, पर नुगरा ना मिले, नुगरे के लख पापी का पार होता है। जिसने कोई गुरु नहीं धारिया, जिसने किसी चीज पर विश्वास नहीं करया, लख पापी का पार एक आदमी के ऊपर है। तो भाई सिमरन करना जरूरी है, गुरु वाला बनना जरूरी है। जिन्होंने नाम नहीं लिया भाई, गुरबाणी भी कहती है गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो भाई गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु तो धारना पड़ेगा। हाँ जी लाभ जी। माटी के तेरी बनी इमारत, माटी की ये काया, माटी की तेरी बनी इमारत, माटी की ये काया। इस जीवन का नहीं भरोसा में आया या न आया, कुछ कर ले भजन सतगुरु का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। पाप करें और चाहे भलाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पाप करे और चाहे भलाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। औरों को दुख देगा तो खुद भी सुख से कभी नहीं सो सकता। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यहाँ कर्मों का खुला बाजार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। क्रोध मोह लोभ लुटेरे, एवी तेरे पीछे ने। काम क्रोध मोह लोभ लुटेरे, एवी तेरे पीछे हैं। नाम गुरु का जप ले बंदे, बन जाए कर्म तेरे अच्छे हैं। सारी बीती उमरिया झूठ में, सारी बीती उमरिया झूठ में, बेईमानी का किया वो पार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है।
कुछ कर ले भजन सतगुरु का, तेरे जीवन का तो ये सार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हर जगह। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदले जा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका। जोड़ी से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा। रे मनवा जुड़े गांठ पड़ जा। सतगुरु जी तेरा ही आसरा। क्यों नहीं जपदा अंदर वाला, क्यों नहीं जपदा प्रीतम प्यारा। राम तेरे कम आवेगा, तेरी डूबदी बेड़ियों बंदिया, तेरी डूबदी बेड़ियों बंदिया। सतगुर पार लगावेगा, क्यों नहीं जपदा प्रीतर वाला, क्यों नहीं जपदा प्रीतम प्यारा। राम तेरे गम आवेगा, तेरी डूबदी बेड़ियों बंदिया, तेरी डूबदी बेड़ियों बंदिया। सतगुरु पार लगावेगा। करके आयो कोल करार, हुण क्यों दीता मनो विसार। करके आयो कोल करार, हुण क्यों दीता मनो विसार। जमदूता दी पैसी मार, जमदूता दी पवेसी मारो। दानर गाँव विच जावेगा, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला, क्यों नहीं जपदा प्रीतम प्यारा। राम तेरे गम आवेगा।
ਜਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਣ ਭੇਜਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਾਪ ਕਮਾਵਣ ਆਪੇ ਜਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਾਪ ਕਮਾਵਣ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਣ ਉਹ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਣ ਹੱਥ ਮਲ ਮਲ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗਾ ਗਰਭਦਾਸੀ ਟੈਮ ਪੁਲਾਇਆ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਲਮਕਾਇਆ ਗਰਭਦਾਸੀ ਟੈਮ ਬੁਲਾਇਆ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਲਮਕਾਇਆ ਗਰਭਦਾਸੀ ਟੈਮ ਪੁਲਾਇਆ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਲਮਕਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਫੰਦ ਛੁੜਾਇਆ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੇਰਾ ਫੰਦ ਛੁੜਾਇਆ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇਗਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਵੇ ਦਰਦ ਸਵਾਲੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਵੇ ਦਰਦ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਵੇ ਦਰਦ ਸਵਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਐਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਐਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇਂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਕਮ ਆਵੇਗਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮ ਮਸਤਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮਸਤਾਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ जप लो जिंदा राम खिलाड़ी जप लो जिंदा राम खिलाड़ी सत्संग विच मुक्ति पावेगा क्यों नहीं जपदा अंदर वाला क्यों नहीं जपदा प्रीतम प्यारा राम तेरे कम आवेगा तेरी डुबदी बेड़ियों बंदिया तेरी डुबदी बेड़ियों बंदिया सतगुरु पार लगावेगा
सतगुरु जी तेरा ही आसरा। अन्य ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਖों आदमी सीधे रास्ते लाए। देखो एक बात है भाई, कितने डेरे बनाए मस्ताना जी ने, उस टाइम गरीबी बहुत थी। सिरसा जिला में जितने डेरे बनाए और कहीं नहीं बनाए, तो गरीबी कितनी थी। देखो मस्ताना जी बलूचिस्तान के रहने वाले और अनपढ़ बाडी, पर सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह का वचन था, मस्ताना तेरा सत्संग जो है बिना पोथियां किताबों के चलेगा। तो भाई मुर्शद का बड़ा हाथ था, सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह जी का। खुशियां लूटी मस्ताना जी ने सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह जी की, तो मस्ताना जी ने भी साध संगत को खुशियां ही लटाई। गांव गांव में डेरे बनाए। देखो यहाँ नज़दीक गांव चोरमार मस्ताना जी ने बड़ी भक्ति कराई। इस गांव में हाथी था, उसका नाम था हरदम सिंह, मेरे पूरा याद है। उस टाइम छोटा सा ही गांव था। देखो नज़दीक डेरा बनाया चोरमार, पहलवान जी के खेत में समुद्र के नक्शा बनाया है, समुद्री जहाज का। तो जगह जगह गांव गांव में डेरे बनाए, जगह जगह डेरे बनाए। देखो अब डेरे तो थोड़े घने और भी थोड़े से बने हैं, पर जितने मस्ताना जी ने बनाए उतने कई कितने नहीं बने। डवाया करते थे, बनाया करते थे, गिरा देते थे, बनाते थे। दिन रात 12 साल कितनी सेवा कराई। अब भी काफ़ी प्रेमी है मस्ताना जी के चिताए हुए, 5-10% तो होंगे, बाकी तो भाई सदगुरु को प्यारे हो गए। तो भाई मस्ताना जी की बड़ी रहमत है, उन्होंने बड़ी तवज्जो करी। उस टाइम रास्ते भी कच्चे थे, उस टाइम गाड़ियाँ मोटरा भी कम होती थी, और इतना संगतों से प्यार, पैदल जाया करते थे। देखो हाँ जी, हुण भी मेरी जो लंगर च ड्यूटी होती सी, घोड़ा वाली गांव ही है जी चक्का के पास, तो वो बूढ़े रहते थे डेरे में। कहना जी सब्जी क्या की बनाई है? मैं कहा जी बैंगना की बनाई है। ऐसे इसके माँ क्या गाल है? मैं क्या बताऊं? क्या कुर्सी और गाल दे? कहना बताऊं तो बैंगन तो चीज तो एक ही है ना, क्या माँ क्या गाल है? बताऊंगा कड़छी और गाल दे। कहना भोले भाले आदमी, देखो ऐसे भोले आदमी बाबा जी को रहंदे सी, उन्होंने फायदा उठाया। देखो उथे कोई संत नहीं गया, लेकिन रंगला जी थे ना, अपने रंगला जी ठेकेदारी कराया करते थे। वो उधर से लेबर को लेके आया चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से रंगला जी डेरा जगमाल वाली, मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम डेरा जगमाल वाली, रंगला जी लेके आए बाबा जी के सत्संग पर। तो सबको नाम दवा दिया, जितनी भी लेबर आई। तो मैनेजर साहब जी के सत्संगी थे वहाँ, तो 1-2 बारी जगमाल वाली आए, फिर गोरियाल भी आए। तो बाबा जी की रहमत थी, बाबा जी ने तो भजन और सेवा सिखाया। गरीबी बहुत उधर, तो मैनेजर साहब जी की रहमत से भाई रघुवीर जी के टाइम का कपड़ा बहुत पड़ा था, बड़े बड़े थान। तो सतगुरु की दया मेहर से सबको 2-2 सूट दिए। 25-30 आदमी आए, सबको सूट दिए, फर्स्ट क्लास कपड़ा। तो जब हम गए तो उधर बड़ा प्रेम, कई गांवों में गए। एक गांव में प्रोग्राम करके गए, तो 5 बजे हम उस गांव में पहुंचे, तुलसी जी के गांव। तो 2 किलोमीटर दूर बैंड बाजे लेके खड़े। देखो कमाल कर दी, इतनी खुशी, सारा गांव। तो सत्संग के बाद मेरे को रोटी खवाई ऊपर चुवारे पर। 12वीं में पढ़ता एक लड़का लंगर लेके आया मेरे वास्ते। तो दाढ़ी वालों को चमचा चाहिए, मैं कहा दाढ़ी नाली पड़ जाए, मैं कहा भी चमचा लेके आ। अपने चमचा तो चमचे को कहते हैं, वो चमचा क्या इतनी बड़ी कड़छी भी आया। मैं कहा यार कमाल कर दी, तू चमचा ले गया ना यार। मैं उसको धमकाया, वो दौड़ के गया, फिर इतनी बड़ी कड़छी ले आया।
तो मैं कहा यार कमाल हो गई। तो वो दादा कहता है अरे चिमची चिमची लिया चिमची। फिर चिमची लेके आया। तो 12वां मैं तू 12 जमात पढ़िया कहता कुछ तो देख लै भी कड़छी नाल कोई टूई च खुरक करनी है। मैं कोई दस लै हैं भी टूई च खुरक होंगी है। एडी बड़ी कड़छी लिया स्टूल दे उतों नहीं होगी कि मारे कहते चमचा कड़छी को कहते हैं। दादा कहते चिमची चिमची। फिर लेके आया तो बड़ी संगत हसी। मैं हैरान हो गए भाई हैं जी केड़ा ये बच्चे उठो नहीं ना। तो भाई बाबे की बड़ी रहमत है। देखो मैनेजर साहब जी ने रचना लाई। फिर दिल्ली से 650 किलोमीटर देखो दूर, दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर इन बच्चों की माँ थी। इतनी तकलीफ आई आराम ना कहीं से होवे। तो रोती के फोन आया करें अपने दादाजी के पास। तुलसी बाबा जी का कविराज था। तो एक दिन मेरे को फोन पकड़ा दिया तुलसी जी ने कि ये लड़की रो रही है मेरी पोती, तकलीफ बहुत है। मैं कहा भाई ऐसे कर तू इधर डेरे में आ जा, सदगुरु भली करेगा। तो हम दिल्ली थे उस टाइम, चारदीवारी कर रहे थे हिरन कूदना। तो 4 आदमी उसको पकड़ के ले आए जी। बरसात हो रही है, आगे बैठाए। मैं कहा देख भाई बात ये है तेरे से ज्यादा बीमार था मैं, सेवा से ठीक होया, सेवा कर भाई। सेवा करवानी शुरू करी, महीना रहे, थोड़ा अपना डॉक्टर का भी इलाज कराया, गोरी वाले आ गई। ऐसी सतगुरु ने रहमत करी। अब डेरे में रहता सारा परिवार ही, क्यों मैनेजर साहब की रहमत थी। फिर उस लड़की ने अपने प्रोग्राम कराया अपने ससुराल में। तो जो गांव का सरपंच था अपनी गाड़ी में बैठा के बड़ी उसने इलाज कराया। सियाणों के पास गया, मुसलमानों के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, नहीं राम आया। जब सत्संग रखाया तो सरपंच ने कहा, गांव वालों ने कहा भी ऐसा आदमी कौन है जो इस लड़की को ठीक कर दिया। तो करने वाले तो अपने बाबा जी हैं, मैनेजर साहब जी। जो मैनेजर साहब जी का सहारा ला के चलेगा उसका बाल नहीं बिंगा होएगा। ये कह देगा मैं करूंगा तो कख नहीं हो सकता। तो बाबा जी की रहमत थी, सवाल तो बाबा जी ने करनी थी। सरपंच आया मिलने के लिए, सारे काम को रोटी करी इतने गरीब परिवार ने, और बड़ी खुशी मनाई कि कमाल की बात है जी। तो रंगला जी भी वहां आए हुए थे। तो उस संगत में गरीब को देखो वहां पूरियां, हलवा और छोले की सब्जी बनाते हैं। तो सतगुरु की दया मेहर से सारी संगत को वहां 10,000 रुपया बांटा, गरीब संगत को। तो अब वहां से संगत आती है। हम तो दिल्ली थे, जगमाल वाली आए थे, वो 5-10 आदमी गोरी वाले चले गए, हम पलिया गए थे। तो दिल्ली हमारे को मिले हिरन कूदना में। तो इतनी गरीबी में भी देखो बाबा जी के पास आते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के आते हैं, मजदूरी करके किराए के लिए पैसे, और इतनी दूर आते हैं। देखो दिल्ली से 600 किलोमीटर पड़ने हैं, 300 किलोमीटर दिल्ली है, आन जान 1800 किलोमीटर होगा। देखो इसको कहते हैं प्यास। ये जो प्रेम है संतों का, ये तड़प वालों की चीज है। अब पानी लेके आए हैं, पानी तो वो ही पिएगा जिसको प्यास होगी। तो भाई संतों के प्यार की प्यास भंडारे पर आते हैं। तो नजदीक वाले प्रेमी रह जाते हैं अपनी मान बढ़ाई में। बाबे कहते दूर से आया आदमी फायदा उठा जूगा। अब लाइट जगा दो, कितनी दूर से भमक्कड़ आते हैं भाई, वो जान कुर्बानी कर जाते हैं। वो मरने के लिए ही आते हैं, उनको इतना लाइट से प्यार है, बमरे को इतना लाइट से प्यार है। इतना कोई प्यार करेगा संतों से, वो आदमी का बेड़ा पार है। जैसे भमक्कड़ आके खत्म हो जाता है, हमारे को इतना प्यार होना चाहिए, अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। खत्म कैसे करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मारना है। अहंकार को मारना है जमा, बिल्कुल इस बॉडी को नहीं मारना। जो अंदर बारे दुश्मन बैठे हैं
इस घर में कोई सांप बढ़ जाए ना, अंदर नहीं कोई बढ़ेगा। जहाँ तो उसको मारो, जहाँ पकड़ के बाहर निकालो। एक सांप से डरते हैं। तो हमारे अंदर 5 सांप बैठे, 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, कार। उन्होंने डंग मार मार के हमारे को इतना जहर चढ़ा दिया, इतना जहर चढ़ा दिया, हम संतों की बात ही नहीं मानते, सब मन मर्जी करते हैं। मैंने सही फरमाया करते थे भाई कि 2 पाई का आदमी आ जाएगा, उसकी बात मानेंगे, फकीरों की कोई नहीं मानता। हम डेरे में रहते थे भाई, सब मन मर्जी करते थे, बाबा जी की बात ही नहीं मानते थे कि हाँ जी कहना, आके डक्का नहीं तोड़ना। तो इसीलिए हम भाई धक्के खाते फिरते हैं। बाद में तो पछतावा ही है, मौके पर जिसने फायदा उठा लिया, फायदा उठा लिया, बाद में तो पछतावा ही है भाई, तराई चढ़ जाती है, संतों की बात ही नहीं कोई मानता। तो मैं तो जिंदगी निकाल ली, तजर्बा पूरा हो गया। बाकी ठीक बाबा जी कहते थे, वो बात सही है, मौके पर कोई बिरला ही फायदा उठाता है। हाँ जी रवि, दंदन तेरा ही आसरा। खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा, खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा। जद हुंदे पाग सवल्ले सत्संग मिले फकीरां दा, जद हुंदे पाग सवल्ले सत्संग मिले फकीरां दा। खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा, जद हुंदे पाग सवल्ले सत्संग मिले फकीरां दा, जी दर्शन मिले फकीरां दा, जी सत्संग मिले फकीरां दा। हो कोटि कोटि जोड़ करोड़ा माया जोड़ लई, कोटि कोटि जोड़ करोड़ा माया जोड़ लई। रब रसाले अपना जदों प्रीति तोड़ लई, रब रसाले अपना जदों प्रीति तोड़ लई। फस गया विचे आप विशा के जाल जंजीरां दा, फस गया विचे आप विशा के जाल जंजीरां दा। जद हुंदे पाग सवल्ले सत्संग मिले फकीरां दा, हुंदे पाग सवल्ले सत्संग मिले फकीरां दा, जी दर्शन मिले फकीरां दा, जी सत्संग मिले फकीरां दा। हो फकीरां दा, जी सत्संग मिले फकीरां दा।
ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਸਣ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਏ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਮਨ हाँ जी तन तन सतगुरु तेरे आगे